Why is it that others place more thoughts on our imperfections rather than our perfections? Try to accept that you are not perfect, but enough. In these hard times, we have forgotten our worth, our importance. We have been depressed, frustrated. Why do we have to be like this? Why? Assalamu alaikum and good evening, all of you. This is your host Nida Imran, and today we are going to discuss very important points regarding self nourishment. For this session, we have invited Burak Shabir as our honored guest. Assalamu alaikum, Burak. Burak, are you there? Assalamu alaikum, Burak. Can you hear me? Yes, walaikum assalam. Okay. Now let's have a look. Who is Burak Shabir? Burak has been working as a Yes, full-time I'm there. journalist. Burak has been working as a full-time journalist at the News International for over 6 years. She did her master's in English linguistics from University of Karachi. She has served as a visiting faculty member at Sindh Madrasatul Islam University for some time. She taught writing and communication skills there. Last year, she was a part of a 2 week long training in the US for female journalists from Pakistan, while she also served as a TV jury member at the Lux Styles Awards 2019. Welcome to my show, Burak. Thank you so much. Thank you for having me. I'm really honored to have you on the board today. Thank you. Let us hear It's very something about your profession first. Uh, what is the nature of your job? okay. So as you already mentioned that I'm a journalist, so it's basically writing and reporting, but it's Okay, soft news, lifestyle और right. entertainment related जितनी भी events और चीजें हैं that are happening in the city, वो हम लोग की basic coverage होती है. तो we cover TV, theatre, film, music, and fashion. You know, Right. arts and culture and lifestyle. But Okay. obviously abhi to there are no events happening, so we are majorly relying on interviews and reviews of whatever is going on television, क्योंकि हर चीज़ की तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है फील्ड में भी इस वक्त एक पॉज आ गया है, so things are slow. Right. Burak, being a journalist, can you please guide my students how can they improve their writing skills? Sure, I think writing के लिए सबसे एक जो की एलिमेंट है दैट इज रीडिंग एक्सटेंसिवली, क्योंकि Okay. डिक्शनरी से हम जितने भी वर्ड्स मेमोराइज कर लें या ग्रामेटिकल अपनी जितनी भी गलतियां सुधार लें, ऑब्वियसली दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट अनलेस हमें किसी एक्सप्रेशन का किसी फ्रेज का यूज पता नहीं होगा कॉन्टेक्स्ट में, हम लोग नहीं लिख सकते. सो टू राइट वेल वी हैव टू रीड व्हाट अदर पीपल राइट, हाउ अदर पीपल राइट. एंड सेकेंड एक ये भी है कि इफ़ यू राइट मोर तो उससे भी आपकी स्किल्स बेहतर होंगी, एज इन के नॉट अ डेली डायरी में बी, बट इफ देयर इज समथिंग यू नो वंस और ट्वाइस अ वीक यू फील लाइक राइटिंग, तो उसमें अगर आप Hmm. लिखते हैं तो आपको एक्सप्रेशंस अपने किस तरह अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, यू नो हाउ टू डू इट, सो दैट आल्सो हेल्प्स, बट रीडिंग इज द की. Reading is the key. Very good. Okay, या Burak. Now I'll move on to our topic, and today's topic is know yourself, know your worth. The first question I'm श्योर. going to ask you, Burak, is that how can we survive in a society where people fail to live according to their own standards? Rather, they follow the expectations of others. या आई थिंक इट्स अ पिटी दैट हम लोग इससे पहले कि अपने लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करें कि हम किस तरह की शख्सियत चाहते हैं फॉर आवर सेल्व्स, किस तरह की लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, हमें उससे पहले ही बता दिया जाता है, आइदर फैमिली है, आइदर सोसाइटी है, और इवन ब्रॉडर लेवल पे द कंट्री एंड द कल्चर वी ऑपरेट इन, कि किस तरह की लाइफ होनी चाहिए. ऑफ कोर्स हम Right. जहाँ से आते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वेदर इट्स द फैमिली, इट्स द सोसाइटी और द कंट्री, आवर लाइव्स डू रिफ्लेक्ट दैट. ठीक है, हर कोई डिफरेंट लोगों, डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट लोग आते हैं, वो अपने कल्चर्स को, अपनी सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो इतना ज़्यादा प्रेशर
हो जाता है एक इंडिविजुअल पे कि उसकी अपनी सोच कहीं साइड पर रह जाती है इन अ लॉट ऑफ केसेस, वेदर इट्स अबाउट मेन और वुमेन, आई वोंट से कोई स्पेसिफिक जेंडर के हवाले से, बट इट्स फॉर एवरीवन, every individual has Right. this baggage, this set of standards that they have to live up to. तो I second you that ऐसा है बिल्कुल, and how to overcome that, I think जब हम पैदा होते हैं तो obviously हमें अक्ल नहीं होती, हमें पता नहीं होता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, like nothing of that we know, we don't know anything. तब हमारी फैमिलीज, हमारी सोसाइटीज, हमारे रिलेटिव्स, हमारा कल्चर हमें बताता है कि हम जिस कल्चर में आए हैं उस हिसाब से हमारी लाइफ होगी. बट आई बिलीव दैट वंस वी आर ओल्ड इनफ टू नो आवरसेल्व्स, एज इन आपकी स्कूल लाइफ हो गई या फिर आप टीन एज में जाते हैं जहाँ पे आप अपने आप को पहचानते जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं. आई थिंक उस स्टेज पे बहुत ज़रूरी है दैट वी टॉक टू आवरसेल्व्स, वी सी किस चीज़ से हमें खुशी होती है, किस चीज़ की हमें पोटेंशियल है, क्या चीज़ हम करना चाहते हैं, एज अपोज टू सोसाइटी या फैमिली क्या चाहती है. ऑब्वियसली आई वोंट से कि आप रिबेल बन जाएं और हर चीज़ के अगेंस्ट जाके अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारनी है. ऑल्दो अगर इफ़ यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन दैट इज़ ऑल्सो फाइन, कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं हो रही तो आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्जी है. लेकिन ऑब्वियसली फैमिली है, चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि फैमिली भी हो, सोसाइटी भी हमें एक्सेप्ट करे और हम अपनी मर्जी भी से भी सब कुछ कर सकें. ऐसा नहीं हो सकता. आई थिंक वंस यू नो कि आप क्या चाहते हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने फ्लॉज, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस के साथ, और फिर वो सोसाइटी से अलाइन हो ना हो, दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न. बट the limited circle that you have, people who matter to you, people who you matter to, like आपकी family है, आपकी friends हैं, आपके spouses हैं, उन लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन है, दे नो यू, दे एक्सेप्ट यू. ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये कि आप खुद एक्सेप्ट करें, बट देन उसके बाद यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट योर ओपिनियंस टू देम. बट ऑन अ लार्जर लेवल आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूँगी और फिर सोसाइटी भी इससे खुश रहे. ये नहीं हो सकता. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि अपनी मर्जी कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन फिर सोसाइटी की एक्सेप्टेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं हो सकता. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें ये भी है कि हम अपने लिए तो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, बट देन हम हमेशा दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते. वही दूसरे जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, तो वी डोंट लाइक इट. सो एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एंड एक्सेप्टिंग अदर्स द वे दे आर, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Okay, accepting yourself and accepting others. Burak, should we avoid perfectionism in our lives? I think perfectionism is not something that we should run after. हम सबने बहुत दफ़ा ये बात सुनी है कि nothing is perfect, nobody is perfect. तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ भी perfect नहीं होता. हर चीज़ को बेहतर बनाना, whether हम as a person, as a professional या as a society, on a societal level, हम कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन. लेकिन परफेक्शनिज्म के पीछे हम नहीं भाग सकते, बिकॉज दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. हर चीज़ जैसी है उसके प्लस माइनस स्ट्रेंथ्स वीकनेस के साथ लेकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं. बट ऑब्वियसली देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट परफेक्शन आई डोंट थिंक इज़ अ गुड थिंग टू फॉलो. राइट. हाउ टू एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स? हम नेगेटिव थॉट्स को अपनी ज़िंदगी से कैसे निकाल सकते हैं? ओके, so far मैंने on a lot of occasions ये सीखा है कि किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए या उस चीज़ से निकलने के लिए, rather than thinking about what we want to avoid, we need to focus on what we want to look forward to. Okay. So for example, किसी चीज़ से मुझे निकलना है, बस मेरा मोटिव ये है कि उससे निकलना है, तो हो सकता है मैं उससे निकल के किसी और ऐसी नेगेटिविटी में या ऐसी चीज़ में चली जाऊँ, फिर मुझे उससे भी निकलना होगा. So unless मैं आगे की सोचूं, आगे what I look forward to, और पीछे की चीज से भागने का कोई फायदा नहीं है. सो नेगेटिविटी से अगर निकलना है तो rather than thinking कि उससे निकलना है, you should move towards positivity, and naturally that will replace the negativity. Right. That's how I look at it. Right. Okay. How can someone recover and fix out their own mistakes? So we all make mistakes, or including me, I think we repeat our mistakes as well. एक दफ़ा हमें नहीं हर दफ़ा लेसन समझ आता है, हम रिपीट करते हैं. जब तक हम रिपीट करते रहेंगे, ऑब्वियसली वही रिजल्ट्स आएंगे जो हम नहीं चाहते अपनी लाइफ में, which is why we call them mistakes, कि मुझसे गलती हो गई. So unless we change our response or change our move or action towards something, और जब रिजल्ट वो आएगा जो हम डिज़ायर कर रहे हैं, तो फिर वो मिस्टेक नेचुरली आप ओवरकम कर लोगे. बट अगर आप वो रिपीट करते रहोगे तो रिजल्ट हमेशा वही आएगा जो आप नहीं चाहते.
तो Right, डिफरेंट right. रिजल्ट के लिए डिफरेंट मूव होना जरूरी है. सो दैट इज हाउ यू अवॉइड एंड ओवरकम दैट. And we should try to learn from our mistakes, right? Rather to repeat the mistakes again and Definitely. again. Definitely. But I Right, think it's very realistic to say that unless we repeat our mistakes a lot of time, we don't really learn a lesson, and it's okay. I think we all are right, evolving as right. human beings. Definitely, and we have to take risk in our life because without taking Of risk, course. is we cannot learn anything without taking risk. Na? To take the risk is the biggest risk. Not to take the risk is the biggest risk, Exactly. I believe. Yeah. Yeah. Acha, Burak, how can we use social media to direct our youngsters towards positive paths so that instead of getting spoiled, they should work on their goals and increase their skill set? सो हम इस वक्त जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं उस हवाले से ज़्यादातर आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ डन मोर हार्म देन इट हैज़ हेल्प्ड द यंगर पीपल बिकॉज एक प्रेशर आ गया है अपनी लाइफ्स को. अगेन जो हम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, वो एक सेट कर लिए हैं सबने, एंड दे वुड कंपेयर देयर लाइफ्स टू अदर्स, और उस वजह से एक प्रेशर, और यू नो इट टेक्स अवे आवर पीस आई थिंक. टू बी बेटर, Okay. टू बी लाइक समवन एल्स जिसको हम सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, Hmm. वो एक स्ट्रेस, एडेड स्ट्रेस आ गया है हमारी जिंदगियों में. बट अगर आप पॉजिटिविटी की बात करें कि हाउ कैन दैट हेल्प स्पेशली यंगर पीपल, आई थिंक सोशल मीडिया हैज मेड एनीथिंग पॉसिबल जो कि शायद पास्ट में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे. Whether it's earning through social media, whether it's learning through social media, there is nothing that we cannot do. और इस वक्त स्पेशली आफ्टर द कोविड एलिमेंट एंड द पेंडेमिक दैट वी ऑल हैव बीन फेसिंग, आई थिंक कितनी चीज़ें जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि ऑनलाइन पॉसिबल होंगी, आज वो सब कुछ हो रहा है. सो जब लिमिटेशंस होती हैं तो आई थिंक इनोवेशन और क्रिएटिविटी वहीं से निकलती है, वहीं से पॉसिबिलिटीज आती हैं. एंड आई एम श्योर कोविड इंशाल्लाह खत्म होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी अभी जनरेट हुई हैं इन दिनों में जो कि आगे भी लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि इस बीच उनको Right. पता चला कि हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ you know the online world during these times that we never imagined we had to face. But the thing is, we should have the right direction. If we are going to the right direction, only then we can acquire things in a positive way. There are various True, uses of true. social media. हम उसको पॉजिटिव वे में ही अगर यूटिलाइज करें और उन यूजेस को देखें तो फिर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. हम प्रोडक्टिव होंगे, हम लर्निंग की तरफ जाएंगे. रादर टू बिल्कुल. टेक द थिंग्स इनटू नेगेटिव वेज ना. हम बहुत सारे True. मैंने स्टूडेंट्स को देखा जो सोशल मीडिया को सिर्फ नेगेटिव वे में अप्रोच करते हैं या उसमें सिर्फ नेगेटिव चीजें ही Yeah. सर्च आउट करते हैं. तो रादर टू वेस्ट योर टाइम इनटू नेगेटिविटी, वी शुड ट्राई टू स्प्रेड Yeah. पॉजिटिविटी एंड वी शुड ट्राई टू डिस्कवर पॉजिटिव थिंग्स. और मेरे ख्याल से कि कोविड, आई True. एम टोटली अग्रीइंग विद यू कि ये कोविड ने तो बहुत अच्छा हमें टाइम दिया है. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि हम बहुत True. सारी चीज़ों को जो हमारे पास इतनी फास्ट लाइफ में टाइम नहीं था लर्न करने का, नाउ वी आर एबल टू लर्न दोज थिंग्स. हमें अब टाइम मिला है कि हम उन चीज़ों को यूटिलाइज करें और लर्निंग की तरफ जाएं. राइट. बिल्कुल. ओके. Burak, where can one find happiness? Where can one discover happiness? कहाँ मिलती है खुशी? I think different people feel that they find it in different things. But after I Okay. think so many years of my life, I have finally come to realize and understand that it actually comes from within. I used to argue Okay. with people कि यार within क्या मतलब है, मतलब ऐसा नहीं होता कि it exists within. Obviously there are outward factors जो आपको खुशी देते हैं, family related है, आपकी कोई achievement है, या आपको किसी ने praise कर दिया, वो सब चीजें obviously lead to happiness, make us happy. But I think above everything else, it actually comes from within, क्योंकि आप कितने ही अचीवमेंट्स हों, कितनी ही लोग आपको ऐसी बातें कहें जिससे आपको खुशी महसूस हो, जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो, यू वुड नॉट फील दैट, एंड दैट इज वेरी ट्रू. और अंदर Right. से खुशी फील करने के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट वही है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, दैट वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ कीप डाउटिंग Right. एंड क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स. Right. It means happiness is where you are now and nowhere else at all. Right. It's True, not true. related to a new relation. It's not related to a new job. It's not related to a new car. It's just related to Yeah. your own acceptance. That you, we should try to give up on the idea that happiness is somewhere else. It will never be where you are. Right. Okay. True. So how can we stop questioning about the toxic traits in our characters? Okay, so again we come to that.
के एक्सेप्टेंस वाली जो बात है उसी को हम आगे कर सकते हैं कि पहले तो ये कि टॉक्सिक आपके लिए जो है वो शायद मेरे लिए टॉक्सिक ना हो, जो मेरे लिए टॉक्सिक है वो आपके लिए टॉक्सिक ना हो. So if there are some traits in our own personality that we think are toxic, we need to work on them for sure. अगर वो वाकई टॉक्सिक हैं और हम खुद ये रियलाइज करते हैं. बट अगर हमें लगता है कि इट्स बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया और हम अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, then that I think that person is playing a toxic part in your life in the sense कि ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को improve नहीं करना, लेकिन किसी के भी कुछ भी कह देने से अगर आप अपने आप को सवाल करने लग जाएं, reflection is one thing, but questioning your worth and questioning if there is something wrong with you, I think that is a very negative thing to do with yourself and it's just unfair to yourself. Right. इसीलिए आई थिंक सेल्फ टॉक का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम किसी और से एक्सप्रेस करें ना करें, बट एटलीस्ट वी शुड लुक इन द मिरर एंड बी एबल टू एक्सप्रेस आवर ट्रू सेल्फ टू आवरसेल्व्स. उसमें हमें जो कमियां नजर आती हैं उस पर हम हमेशा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे तो आई थिंक वो हमेशा उन्हें कमियां ही नजर आएंगी और हम इस तरह कभी भी उनको तसल्ली नहीं दे सकेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरे नहीं उतर सकेंगे. राइट. तो रादर टू सेटिस्फाई अदर्स, हमें चाहिए कि हम अपने आप को पहले सेटिस्फाई करें. अगर हम अपने आप से सेटिस्फाई हैं, अपनी ट्रेड्स अपनी क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं, तो फिर हमें दूसरों की बातों में आकर अपने आप में कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. वी शुड ट्राई टू रिमूव आवर कॉम्प्लेक्सेस. राइट. ट्रू ट्रू. ओके. हाउ कैन अ गर्ल बिकम स्ट्रांग इनफ दैट शी कैन फेस द व्हेन यूजुअली they face ironical statements given by the public? हम अभी जनरली वी वर टॉकिंग अबाउट एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, मर्द हो या औरत, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट गर्ल्स, क्योंकि हम देखते हैं सोसाइटी में कुछ हवाले से कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कई मामलात हैं या यू नो द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड थिंग्स लाइक दैट दैट गर्ल्स हैव टू कंप्लाई विद दैट, ऑल्दो आई डू बिलीव दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मेन हैव टू कंप्लाई विद एज वेल, जस्ट बिकॉज वो हम इतना बात शायद करते नहीं है, वरना अगर इफ यू हैव अ मैन ऑन बोर्ड एंड यू नो ही विल टेल यू कि उनके ऊपर भी कितने प्रेशर्स होते हैं सोसाइटल, बट या वुमेन हैव सम थिंग्स जो ज़्यादा complicate करती हैं the lives of women because they don't have that freedom. All women do not have that freedom. उसके लिए I think again लड़की हो या लड़का, अपने ऊपर जो confidence वाली बात है और फिर अपने immediate circle which is I think the family and the you know friends, वहाँ तक अगर आप अपना आहिस्ता आहिस्ता करके you know आप push कर सकते हैं to fulfill your dreams, to pursue your career, तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि my journey has also been like that. ऐसा नहीं था कि कभी भी चीजें बहुत आसान थी कि अच्छा मुझे ये करना है तो ये करने दे दिया, ये करना है तो ये करने दे दिया. तो एक एक स्टेप पे किसी ना किसी तरह मैं रिक्वेस्ट और स्ट्राइव करती रही और मेरे करीब के जो लोग हैं जो इम्पोर्टेंट था जिनका मेरे साथ होना, Okay. I guess there is some connection problem with Burak. She was trying to tell us that we should not feel complex about the statements of the people. लोगों का तो काम है बातें बनाना और वो बातें बनाते रहेंगे. हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना पैदा कर लेना चाहिए कि हम लोगों की हर किस्म की तंज़िया गुफ्तगू को बर्दाश्त कर सकें. Yes, Burak, are you there? Yes, I'm here. Okay, Burak, continue. Sure. Yeah, so where were we? Yeah, मैं आपको ये बताई थी कि कभी भी बहुत आसान नहीं होती चीज़ें. आई एम श्योर सबके लिए नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं होता है. जैसे मुझे अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि यार मेरी फैमिली इस तरह की थी, हमेशा से कोई मसला नहीं था, पढ़ना था, ये करना था, सबको पता था, और एक पॉइंट पे आके शायद होता है आपको कन्विंस करना है फॉर योर ड्रीम्स. बट आई हैव हैड अ डिफरेंट जर्नी जहाँ के शुरू से इट वाजंट लाइक आई वाज फॉलोइंग समथिंग या बहुत नॉर्मल चीज़ें थी. अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन इन माय लाइफ वाज नॉट यूजुअल एट ऑल गिवन वेयर आई कम फ्रॉम एंड यू नो द रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग. सो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि आपको हर स्टेज पे कहीं ना कहीं खुद भी स्ट्राइव करना पड़ता है, और आप लकी हैं दैट आई हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वालों को, अपने फैमिली को जो है कहीं ना कहीं आपको उनका सपोर्ट मिलता रहे, सो यू आर एबल टू अचीव दैट. बट आई एम श्योर कि दिस इज़ अ हिंड्रेंस जहाँ पे आप नहीं निकल सकते अपनी चार दीवार से, तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स पे एक स्टॉप लगाना पड़ता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बट इट्स वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर रियलिटी. And sometimes we do have courageous talks with our parents or with our elders, जिनको हमें रियलाइज कराना पड़ता है
कि वी वांट दिस फॉर दिस गोल, या मतलब अपनी अपनी जो आपकी इंटेंशंस होती हैं आपको उनको क्लियर करना पड़ता है उनके सामने कि व्हाई डू वी रियली वांट दिस टू गेट अचीव. या Buraq, do you या agree that the concept of body shaming and color shaming should be eliminated from our society? Because in that way, we are only pointing at Allah's creation, right? डेफिनेटली आई मीन अगर अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक की बात करें तो उस पर तो ऑब्वियसली वी हैव नो राइट टू क्वेश्चन ऑन एनी सिंगल थिंग, जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हम खुद भी करते हैं लेकिन हम खुद चाहते नहीं है कि हम पे कोई क्वेश्चन करे. बट अदर देन दैट एज वेल, मतलब अल्लाह ताला की उसके ऊपर तो ऑब्वियसली कोई सवाल की गुंजाइश ही नहीं है किसी भी एंगल से. बट अगर हम सोसाइटी की भी बात करें और जो हम एक्सेप्टेंस की सारी बात कर रहे थे, तो आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत सुपरफिशियल हैं. लड़का हो, लड़की हो, आदमी है या औरत है, कोई भी है, उसकी जो भी पोटेंशियल है, उसकी काबिलियत है या उसकी जो भी शख्सियत है, उसका किसी भी सुपरफिशियल एस्पेक्ट से कोई वास्ता मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए. कलर है, हाइट है, वेट है, या इवन कोई अल्लाह ना करे डिसेबिलिटी है, कोई भी चीज़ है, उसमें ना तो एज सच उसका फॉल्ट है और ना ही उसको डिफाइन करता है, क्योंकि वो तो एक लेयर है Right. ना, एक आउटर लेयर है. द पर्सन whatever whoever the person is, उससे उसके कलर का, साइज का कोई वास्ता नहीं है. So it's all about how people are as persons, how you treat others, how you you know how well you are doing in life as a person, as a professional. इन सब चीज़ों का आई थिंक कोई वास्ता नहीं है. ऑल ऑफ दी सुपरफिशियल थिंग्स जस्ट शुड बी वेरी लाइक दीज आर वेरी पेटी थिंग्स टू इवन टॉक अबाउट. बट सैडली यही मामलात हैं जिन्होंने हमारी जिंदगियों को आजकल अफेक्ट किया हुआ है. Exactly, that's what I'm asking about you. कि हम बड़े मजे से हम कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि these are just petty things, but people are really facing such things in their lives. हम बहुत मजे से जब भी, Yeah. especially at the time of proposals, जब किसी, आप लड़का हो या लड़की हो, irrespective, जब हमारी सोसाइटी का ये नॉर्म हो गया है कि जब हम किसी कोई प्रपोजल लेकर जा रहे हैं तो हमारी लड़कियां, हमारे लड़के, ये सब चीज़ें रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं. जी. बहुत सी खवातीन बहुत मज़े से कह देती हैं कि ओ ये तो काली है, ये मोटी है, ये इसकी हाइट कम है, या ये काला है, इसका कम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है. हम इन सब चीज़ों को बहुत मज़े से कह देते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि हमने दूसरे की फीलिंग्स को कितना हार्म किया है. और हमारे यहाँ की जो आजकल की जनरेशन है, स्पेशली जो ये एज ग्रुप होता है, पर्टिकुलरली टीन एज, ये बहुत ज़्यादा इन सब कॉम्प्लेक्सेस को लेकर अपने अंदर, मुझे लगता है कि इनकी ग्रोथ जो है वो वहीं रुक जाती है. जब वो कोई लेबल अपने ऊपर देख लेते हैं कि काली का, मोटी का या छोटी का लेबल अगर किसी लड़की या किसी लड़के पे लग जाता है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो वहीं रुक जाती है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स. जो वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है उस वक्त दूसरे की रिजेक्शन से. तो हम ये सब चीज़ें कैसे फेस करें बच्चों को, या टीन एज जो लड़के हो या लड़की हो, उन सबको ये सिचुएशंस किस तरह फेस करनी चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मुझे लगती है वो है कि फैमिली जहाँ पे वो बच्चा बड़ा हो रहा है, मतलब जो भी बच्चा है, फैमिली की तरफ से अगर उसे कॉन्फिडेंस दिया जाए कि उसका Right. रंग, उसका कद या उसका वजन उसको डिफाइन नहीं करता, उसको अच्छा या बुरा इंसान नहीं बनाता. उसको पता है कि उसके जो सबसे करीबी लोग हैं, जिनके साथ सबसे ज़्यादा वक्त उनका गुजरता है या जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, वो अगर कॉन्स्टेंटली आपको ये कॉन्फिडेंस देते रहें जब से आप पैदा हुए हैं उस घर में कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू बिकॉज ऑफ योर अगेन दी सुपरफिशियल एलिमेंट, उसमें जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड पर अगर पूरे नहीं उतर रहे. अव्वल तो ये स्टैंडर्ड बनाए किसने? हम ही है ना जो सोसाइटी फॉर्म करते हैं. आई Exactly. कम टू दैट इन अ बिट. लेकिन मेजर आई थिंक फैमिली का रोल है. जब आपको फैमिली से वो कॉन्फिडेंस मिलता है, जब आपको फैमिली से एश्योरेंस मिलता है, सो मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके चीज़ें उस तरह अफेक्ट करती हैं जैसे अभी कर रही हैं लोगों को, क्योंकि फैमिली में भी एक ये चीज़ रहती है कि सोसाइटी ऑब्वियसली सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है. तो फैमिली से भी अक्सर लोग सुनते हैं कि वही बातें जो सोसाइटी में होती हैं वही बातें घर वाले भी करते हैं, क्योंकि वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है. फिर आप भी वही बातें अपने Right. बारे में सोचने लग जाते हैं. तो फैमिली का रोल मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, जो सोसाइटी की बात मैंने की, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई मेरे वजन पे कॉमेंट ना करे और मैं कल किसी के रंग पे कमेंट कर रही हूँ, तो फिर मुझ में और उसमें तो फर्क नहीं है.
तो मैं जो अपने Right. लिए चाहती हूँ, आई हैव टू बी द पर्सन फॉर अदर्स एज वेल. आई थिंक दैट इज हाउ अ चेंज कैन कम. वरना मुझे कोई कुछ ना Right. कहे, मैं सबको सब कहती रहूँ, ये तो नहीं हो सकता है, एंड दिस विल कीप मेकिंग द इशू वर्स. Right. Very true. I think we all should teach our children that black and brown is beautiful, irrespective what is the complexion of the person. All the complexions are beautiful, and it is also not necessary that we all are supposed to be slim. It's not necessary that we all are supposed to be, or we all should be slim. Maybe there are body shaming and color. Maybe through that way we can stop the body shaming and color shaming activities in our society. Uh, Yes, Aisha Vasti, you are very much right that we should thank all Allah Subhanahu wa Taala for His innumerable blessings. Yes, there are so many blessings that Almighty Allah has blessed us, but हम सिर्फ एक लेवल जो हमारी सोसाइटी हमें लगा देती है, हम उस लेवल की वजह से अपनी बाकी सारी जो ट्रेड्स, अपने बाकी सारी जो क्वालिटीज़ हैं, उनको पीछे छोड़ देते हैं। और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की वजह से जो है हम फिर अपनी ग्रोथ को वहाँ पर चूंकि रोक रहे हैं, तो फिर हम आगे मूव ऑन नहीं कर पाते. तो दिस इज व्हाट Burak is also trying to tell us, that how someone bounce back from their complexes. Can you please add, Yeah. Burak, some your any your personal experience जो आपने फेस किया हो अपनी लाइफ में या ड्यूरिंग योर करियर लाइफ एज वेल, अगर आपको कहीं किसी भी किस्म का कोई टॉन्ट या कोई ऐसी आयरॉनिकल स्टेटमेंट कभी फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से आपने फील किया हो कि नहीं यहाँ पर तो मैं आप कॉम्प्लेक्स में चली गई और वहाँ आपकी ग्रोथ जो है वो सफर की, आपकी ग्रोथ में कोई ऐसा Okay, so thankfully अपने career में I haven't really come across any such thing. Obviously career के जो challenges हैं field में और work life में, that is there, but not with reference to इस तरह की कोई comments. But I also had an interview recently as well जिसपे मैंने बात ही इसी बारे में की थी. So body shaming has been a major thing in my life. Given that I'm overweight, so people have this thing that they can comment on your weight. जैसे हम सब अपना right समझ लेते हैं किसी की भी superficial उस पे comment करने का. Superficial इसलिए मैं बार बार यूज कर रही हूँ because आप जानते तो है ही नहीं ना उस बंदे को. आपने तो बस देख के ही कमेंट कर दिया कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, कौन कितना किसके साथ मैच कर रहा है, किसी ने दे डिजर्व बेटर, इससे शादी क्यों कर ली, उससे शादी क्यों कर ली, अ लॉट ऑफ थिंग्स तो हम बस देखते ही कमेंट कर देते हैं, विच इज वेरी सुपरफिशियल. तो बॉडी शेविंग हैज बिन अ थिंग. और ऑब्वियसली जब भी किसी ने कोई कमेंट किया तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, आप हर्ट होते हो, आपको लगता है, आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, मे बी यू आर नॉट गुड इनफ बिकॉज यू आर ओवरवेट. तो ये चीज़ें ऑब्वियसली अफेक्ट करती थी. आई वुड से आई थिंक मोस्ट पार्ट ऑफ इट नो लॉन्गर डज, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंकफुली, विच इज़ वाई आई एम एबल टू से ऑल ऑफ दिस, कि वो चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता करके एक पॉइंट आता है जब आप, खैर सब लोग नहीं कर सकते हैं और सब लोग, कुछ लोग फौरन ही जवाब दे देते हैं और कभी किसी ऐसी चीज़ अपने लिए एक्सेप्ट ही नहीं करते. आई वॉज नेवर दैट पर्सन कि मैंने फौरन से रिस्पॉन्ड कर दिया और किसी को शटअप कॉल दे दी, ऐसा नहीं रहा कभी भी. बस वो सुनकर आकर आप जो है अपसेट हो गए, and then you would be hurt and all that. But with time I think आहिस्ता आहिस्ता I have learned to ignore that, क्योंकि उनको तो मैं नहीं खामोश करवा सकती. उनके मुंह से जो जुमला अगर निकलेगा मुझे देख के या किसी को भी देख के, वो तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते. बट आई थिंक जस्ट लेटिंग इट गो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे सकते हैं. और अगर आपको लगता है, मैं अब तक शायद उस स्टेज पे गई नहीं हूँ कि ऐसा जवाब देने की जरूरत है कि आइंदा वो शख्स आपको कुछ कहते हुए सोचे, तो वो भी कर सकते हैं. बट आई हैवंट रियली डन दैट. Okay. Yes, Malia Shahid, you are very much correct that real beauty lies in a beautiful heart. To be beautiful means to be yourself. I also believe that. Okay, Burak, anything else that you want to share regarding the कॉम्प्लेक्सेस दैट वी कैन ओवरकम विद? हम इसके अलावा और कौन सी स्ट्रैटेजीज पे ज़्यादा सोचें या हम अपनी लाइफ की क्या पॉलिसीज फॉर्म करें ताकि हमारे अंदर के जो वो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनसे हम बाहर आ जाएं और हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव वे में ज़्यादा यूटिलाइज करें? तो आप क्या सजेस्ट करेंगी टीनेजर्स को? आई थिंक सबसे पहले वहाँ से शुरू करके जहाँ हम अपने आप से बात करके अपने आप को एक्सेप्ट करें, वहाँ पे वी कैन एक्चुअली मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी थिंक वी आर, कि हम हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं दैट वी वांट टू इम्प्रूव, दैट वी वांट टू वर्क ऑन, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा.
कि बस मैंने रियलाइज कर लिया मुझ में ये कमी है और कल मैं ये कमी दूर कर दूंगी या कर दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इट्स अ जर्नी। आप छोटे हैं, बड़े हैं, किसी भी एज ब्रैकेट में हैं, लेकिन ये जर्नी हमारी आई थिंक आखिरी सांस तक चलती रहती है। एज लॉन्ग एज हम अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और अपने आप पे काम कर रहे हैं। सोसाइटी में भी किसी राइट ने कुछ कहा है तो अपने आप को क्वेश्चन या नेगेटिव नहीं होना, लेकिन अगर आपको लगता है आपके क्लोज फ्रेंड्स या आपकी फैमिली मेंबर्स आपको कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रिफ्लेक्ट करें कि क्या वजह है, किस बात की। And as long as you have an answer to why you did what you did, you don't have to justify it to society. And when you राइट think you don't have an answer and there is something wrong with your behavior or attitude, that then you definitely need to work on. क्योंकि ऐसा नहीं कि इससे तो आप खुद सर हो जाएं कि बस जो मैं कर रही हूँ वो परफेक्ट है और सोसाइटी जो है आई डोंट बॉदर, और मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा बुरा मैं करती रहूंगी, तो वो तो फिर आप अपने आप को रूइन कर देंगे। उससे भी सोसाइटी को राइट कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर यू आर गुड और बैड और यू आर डूइंग गुड टू योर लाइफ और हार्मिंग योरसेल्फ, सोसाइटी डजंट रियली बॉदर. So at the end, it all boils down to yourself, and then obviously, I do believe that you and your family, the very few people who राइट should matter, and whose comments also matter, whose which comments you can also use to matter. Don't forget, to improve yourself. right, and don't forget to love yourself. We should try to love ourselves first of all. And then, yeah, definitely. Beauty isn't about having a pretty face, or it is not about having a beautiful face. A beauty is about having a beautiful soul, having a pretty mind, having a pretty heart, isn't it? One more thing I think I would like to add. Yes. That is, I have seen, I would say I have learned and observed, and I'm still working on it, कि आप जब तक अपने बारे में वो नहीं सोचते जो आप चाहते हैं कि दुनिया आपके बारे में सोचे, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर मुझे लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू थिंक दैट आई एम गुड इनफ अनलेस आई फील आई एम गुड इनफ. If I Right, keep questioning myself and my self-worth, they will do the same. So whatever you right. do, that is reflected in how others look at you. आप खुद ही अगर अपने अंदर कमियां निकालते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे, तो सामने वाला कैसे आपको वैल्यू करेगा until you value yourself and whatever you are. Right. Here, Aisha Vasti added something that parents should not expect too much from their child's academic achievements and compare them with other children. Rather, they should appreciate on their small achievements. This is true. Child is today is adult of That is tomorrow. very true. Yeah, that's very good, Aisha. That's really a good contribution to our session. कि हमें वाकई अपने बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट्स को या उनकी परफॉर्मेंस को रादर टू अप्रिशिएट इट, हमें उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर बच्चे की एक जैसी कैपेबिलिटी नहीं होती, एक जैसी एक्सपर्टीज बिल्कुल. नहीं होती, हर बच्चे की एक्सपर्टीज डिफरेंट होती है। और मेरा ख्याल से I आई think विल which एड वन मोर थिंग। जी जी श्योर। sure. No, you carry on first. आई विल एड वन मोर थिंग हियर कि हमें जो पेरेंट्स का ये होता है ना कि मेरा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने या मेरा बच्चा बड़े होकर इंजीनियर बने, हमें ये थॉट भी बच्चे के ऊपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। आप बच्चों के ऊपर छोड़ दें, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे में कोई स्कोप नहीं है। स्कोप सब्जेक्ट्स में नहीं True. होते, स्कोप इंसान के अपने अंदर होना चाहिए। जी, व्हाट वर यू सेइंग? True. सो आई वॉज अगेन यहाँ पे आ जाती है कि फैमिली की इम्पोर्टेंस, जहाँ अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स में फैमिली से आपको एक बैक चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, वहाँ आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स में भी यही है कि उसके इतने मार्क्स आ गए या इतने मार्क्स लाने। हमने देखे हैं कितने बच्चे कमिट सुसाइड फॉर नॉट बीइंग एबल टू ब्रिंग द ग्रेड्स देयर पेरेंट्स राइट एक्सपेक्ट, कि यार मैं तो घर जाके बता ही नहीं सकता कि आई कुडंट गेट द ग्रेड। सो ये इतना ज्यादा प्रेशर है एक बच्चे के माइंड पे। आई थिंक दैट पेरेंट्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड, एंड ऑब्वियसली बच्चों की भी एक जिम्मेदारी है दैट दे वर्क हार्ड एंड डू देयर पार्ट, लेकिन हर बच्चा अगेन इज नॉट ऑन द सेम लेवल, सबके इंटरेस्ट सेम नहीं होते, सबका पोटेंशियल सेम नहीं होता, बट उसको इंकरेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उसको प्रेशराइज करना, क्योंकि जितना फिर उसमें पोटेंशियल होता है वो भी वो खुल के यूज नहीं कर पाता उस डर की वजह से, द फेयर ऑफ फेलियर दैट यू वुड से। राइट। तो हर बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है, हर बच्चे की अपनी स्किल्स होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना जो है वो शौक उसके ऊपर इम्पोज कर दें कि नहीं जी तुमने बड़े होकर यही बनना है और बिल्कुल. मैं तो तुम्हें यही बनना चाहता हूँ। समटाइम्स मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु हैव अक्वायर्ड द डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग और द डॉक्टरेट, बट लेटर ऑन दे हैव चेंज देयर प्रोफेशंस, क्योंकि वो अपने माँ बाप के शौक की वजह से डॉक्टर या इंजीनियर तो बन गए, Yeah. लेकिन वो उनका पैशन नहीं था। एंड वी शुड follow our
पैशन, हमारा जो बिल्कुल पैशन होता है जब हम वही स्टडी करते हैं तो आई बिलीव कि हम वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होके, और फिर वो हमें बर्डनाइज भी नहीं लगता ना, वो हमें बर्डन भी नहीं लगता, वो हमें लगता है कि बस हम अपना पैशन, अपना जो है वो जो शौक है वो पूरा कर रहे हैं, फिर हमें वो स्टडीज जो है वो बर्डनाइज नहीं कर रही होती। बिल्कुल बट अगर हम किसी के कहने पे कोई चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं, कोई भी पाथ, इट्स नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, बल्कि कोई भी प्रोफेशन हम अगर किसी के कहने पे फॉलो कर रहे होते हैं तो वहाँ हम बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा बुराक, बिल्कुल। कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा इंटरव्यू आपने कभी कंडक्ट किया हो जिससे आपको कोई लेसन मिला हो, विच हैड गिवन यू सम लेसन, या उसके बाद आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो चेंज हो गई हो? कभी हुआ ऐसा किसी से मिलके, कोई ऐसा um, एक्सपीरियंस गेन करके? ऐसा कोई ड्रास्टिक वो तो नहीं कहूंगी कि कोई उनकी सोच या उनकी जर्नी के बारे में सुन के कोई मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ ऑन लाइफ ऑन अ ब्रॉडर लेवल। बट अगर मैं बिट्स एंड पीसेस की बात करूं तो डेफिनेटली मैं, क्योंकि एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू ज़्यादा कर रही होती हूँ जनरली, तो उनकी जर्नीज हैं या किस तरह दे डिड नॉट गिव अप और उन्होंने कंसिस्टेंटली काम किया एंड दे वर फाइनली एबल टू बी समवेयर वेयर दे आर टुडे। तो वो आपको हौसला देती है कि आज एक सेलिब्रिटी जो दुनिया को नजर आ रहा है, उन्होंने भी बेबी स्टेप्स लिए, स्ट्राइव किया, स्ट्रगल किया, विच इज़ वाई आज ये फेम और वो सब इंजॉय कर रहे हैं। तो वो अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, जो कि मैंने अपनी लाइफ में देखी भी है और की भी है। तो वो सारी चीज़ें सुन के आपको डेफिनेटली मोटिवेशन मिलती है। प्लस कुछ सीनियर एक्टर्स हैं तो वो अपने तजर्बे से कभी कुछ शेयर करते हैं तो आपको पता चलता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर समवेयर यू विल टेक टाइम टू रीच, इवन दो आई एम इंटरव्यूइंग देम, लेकिन मैं उनके एक्सपीरियंस, उनकी उम्र को नहीं पहुंच सकती। तो उनके तजर्बे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कभी कभी वो कोई मुझे मशवरा देते हैं या कोई ऐसा टिप देते हैं आफ्टर दे आई इंटरव्यू देम, या वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर, तो उससे भी आपको कोई ना कोई जिंदगी के लिए लेसन मिलता है, विच इज आई थिंक गुड। Right. Aisha Wasim, she has added one more thing, one more comment. Too much criticism leads into श्योर। anger and hatred and eventually develop as criminals. So true, Aisha. That's really correct. Hafsa Tahir has added one more thing, that followed my passion for good. Parents were initially heartbroken and teachers were disappointed, but today they are the proudest. Yes, she is one of my favorite students as well, and we wanted her to be to go into medical side, although her profession was into writing, and she has chosen psychology department now, and she is one of the student over there. But we hope and we are really proud of her, and we believe that she will make wonders in the future, inshallah. Okay, great to be here. I'm very much honored, and I'm very much pleased to have you on my show. And anything थैंक यू that सो you मच। want to give as a message for the younger generation? एंड में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें मेरे स्टूडेंट्स को? आई थिंक हम इस बारे में बात कर चुके हैं, बट अगर एक इम्फोसिस के लिए इफ़ आई ब्रिंग इट अप अगेन, तो मेरा इम्फोसिस यही होगा कि किसी भी और की नज़र से खुद को देखने से पहले आई थिंक पहले अपनी नज़र से खुद को देखें और एक्सेप्ट करें। क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा तो है ही नहीं मेरे बारे में। आपको सब कह भी रहे हैं तब भी आप नहीं करते। तो देयर हैज़ टू बी अ रिफ्लेक्शन, यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, और खुद अपने आप को सबसे पहले आई थिंक समझना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि कोई और हमें एक्सेप्ट करे। राइट। थैंक यू वेरी मच बुराक, थैंक यू फॉर गिविंग मी Thank योर you for टाइम। having me. It's a नाउ माय pleasure. प्लेजर। It's a pleasure. Same here, same here. Thank you very much, all of you. And in the end, I must say that don't forget to love yourself, because you are one of the precious person, and your soul, yourself, is one of the precious thing, and it should be considered as precious in your eyes as well. One should know when to quit. One should know when to change direction. One should know when to leave toxic situations and toxic relations. We should demand more from life. We should give up on something that isn't working. Let them go, move on, do better. These are the important skills that we have to follow if we want to achieve something in our lives. Take care of yourself and have a wonderful life ahead. Thank you very much. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.